Hello everyone. Today in our show we have a very special guest because as all of us know that India is still gasping up and trying to overcome from this pandemic called as COVID-19. So she also had got this virus more than once and still that didn't deter her to continue her preparation and to get into her dream B school IIM Lucknow. Welcome to the show Pallavi. I would like you to first of all give a very brief about your profile to our viewers. Thank you so much, sir, for the introduction. So I am Pallavi. I have done my BTech in Mechanical Engineering from College of Engineering, Pune, and then thereafter I have worked for SKF as a supply chain planner in Pune factory for 2 years. I started my preparation for CAT in Jan 2020 with Genesis Mentors, and have recently converted to IIM Lucknow. Great. Pallavi, since you said that a true COEPN, right? So first thing I would like to be so happy to be your one of your mentors. Pallavi, since you said that you were in SKF Pune factory, right? So it's a core company, right? So Yeah. basically, first being a female, right? Then getting into a core job, right? Where you need to go, be there in the job, right? Shop floor पे भी काफी time देना पड़ता है. So how would you when did you started off? Why did you started off your preparation for CAT? And how what challenges being in a core company you faced in the initial part, and then we'll come on to obviously the pandemic part post lockdown. So when I was placed in SKF, I definitely knew it is a core company, but I didn't know that the area will be women deficient and I'll have to go to shop floor. So that came as a surprise to me as well. So the kind of job I had to do in a core company was definitely hectic as compared to other friends of mine, Correct. which who were doing in IT or other sectors. Correct. So yeah, that was kind of a different phase of my life. That kind of motivated me to get out of my comfort zone, to get out of the shell I was in initially. Uh, my motivation behind going for CAT was from my colleagues. Many of them motivated me to, sharpen my skills and upgrade them. So I decided to pursue MBA so that I could get Good. those Great. managerial skills, those presentation skills with me. तो पल्लवी आपने डिसाइड किया जनवरी में राइट कि लेट्स स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन राइट आई स्टिल रिमेंबर दैट फर्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर ऑफलाइन क्लासेस यू वर कमिंग टू द क्लासेस राइट ऑलमोस्ट डेली राइट एक टेम्पो बन गया था एक वार्म अप चालू हो गया था एंड देन सडनली दैट लॉकडाउन एंड पेंडेमिक इंडिया वाज ऑल इनटू दैट राइट सो थोड़ा सा प्री पेंडेमिक पोस्ट पेंडेमिक आपकी तैयारी कैसे शेप हुई फिर हम कैट के बाद दूसरे फेज पे भी आएंगे बट थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे कि पहले तो प्री पेंडेमिक देन पोस्ट पेंडेमिक क्या डिफरेंसेस आपने फेस किए इट प्रोबेबली वुड हैव बीन डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एज वेल प्लस इन अ कोर कंपनी शायद आपको बाद में भी जाना पड़ा होगा थोड़ा सा उस पर इलेबरेट करेंगे तो आई थिंक सो व्यूअर्स विल डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड अलॉट बिकॉज you against all odds if you have done it. I think so everybody, the entire idea of this video is that they should also get motivated and they should feel that it is within their reach as well. सो सर प्री पेंडेमिक तो हमने क्लासेस ज्वाइन करी थी, हमारा जी. सिलेबस ऑलमोस्ट 40 to 50% खत्म होते आ रहा था। और ऑफलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हम क्लासेस से पहले या फिर क्लासेस के बाद का जो टाइम है वो वहीं पे बैठ के क्लास Correct. में पढ़ा करते थे, जो भी डाउट्स है वो वहीं पे क्लियर हो जाते थे। Correct. सो ये जो चीजें थी वो स्ट्रीमलाइन थी कि ऑफिस से सीधा क्लासेस जाओ, वहां पे बैठ के पढ़ाई करो, देन अटेंड द क्लासेस Correct. एंड गो बैक टू होम। Correct. तो ये वाला जो है वो पैंडेमिक की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया। एक तो Correct. सबसे पहले क्लासेस अचानक से बंद हुई Correct. हमारी, कुछ Correct. आइडिया ही नहीं था। Correct. लकीली वी हैव हैड सम ऑफ द रिकॉर्डेड क्लासेस, तो बीच में जब कुछ नहीं था तो हमने उससे कंटिन्यू किया। Correct. और फिर पोस्ट पैंडेमिक बीच का आई थिंक एक आध महीना वगैरह ऐसा होगा जहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। Correct. टाइम था लेकिन पढ़ने के लिए क्लासेस नहीं थी। Correct. सो वो सारी अरेंजमेंट्स हो गई। देन वी स्टार्टेड कि इसका एडवांटेज कैसे लिया जाए। तो टाइम है तो जब चाहे तब पढ़ सकते थे, ये वाला एडवांटेज डेफिनेटली था। देन बिकॉज मैं मैकेनिकल इंडस्ट्री में थी तो हमारे ऑफिसेस वगैरह शुरू हो गए थे, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे तो डेफिनेटली उनको टाइम मिल रहा था, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी बच रहा था। Correct. लेकिन हमें ऑफिस जाना पड़ता था, तो
पैंडेमिक में ऑफिस जाना ये एक अलग लेवल की फीलिंग है। एक तो पूरे रास्ते में पुलिस करेक्ट, होंगे और करेक्ट, हर चेक पॉइंट पे आपको चेक किया जाएगा करेक्ट, और उस वो सब कुछ करके आपको ऑफिस जाना है, पूरे करेक्ट, पैंडेमिक में वापस आना है। करेक्ट, वो अलग वाला एक फील भी रहता था कि यार अपने घर वाले सेफ नहीं है जस्ट बिकॉज वी करेक्ट, आर गोइंग आउटसाइड। करेक्ट। सो मुझे फर्स्ट टाइम कोविड हो गया था जून 2020 में। ओ, तो तब मैं घर पे थी, लेकिन उसके बाद मैं ऑफिस में जब जाना शुरू कर दिया तब आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि एक बार हो गया तो वापस से होने नहीं वाला। तो दूसरी बार जो हुआ इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ कि अपने आप को अभी होके गया, होने नहीं वाला। तो मुझे सेकेंड टाइम कोविड हो गया मार्च में जब मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा बहुत था। इंपॉर्टेंट तो फेज था। आई मीनवाइल ग्रेट। मीनवाइल जब मेरा पहली बार होके गया था तब ऐसे लगा यार कि बहुत सारे लोगों के ऑफर्स भी रिवोक हो रहे थे तब, जी। अ, जो पास आउट्स थे। तो बीच में ऐसे लगा कि शायद इस साल एमबीए नहीं करना चाहिए। सो ओके। आई काइंड सो ऑफ बीच में गेव कहीं अप। थोड़ा थोड़ा राइट, हाँ, कभी मोटिवेशन आता है, कभी थोड़ा जाता है, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? सो आई वांट टू जस्ट गिव इट टू माय ऑडियंस दैट एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? जो लखनऊ पहुंचते हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, एबीसीएल, राइट, द टॉप फोर्स, जो भी वहां पहुंचते हैं, राइट, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट? कभी बीच में लगेगा ऐसा, कभी नहीं लगेगा। तो पल्लवी, फिर आपने कैसे कैट तक मोटिवेशन रखा, कितने मॉक्स लिखे, राइट? क्या आप अपनी तैयारी से खुश थे? कैट में बहुत अच्छा गया या थोड़ा और स्कोप था? राइट, आप व्यूअर्स को क्या उसमें सजेस्ट देना चाहेंगे पहले फेज में? फिर मैं सेकंड स्टेज पे ज्यादा हूँ, बिकॉज सेकंड बार कोविड हुआ, इंटरव्यूज चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है अभी, was a different level of problem, right? So they would learn from that phase even more. बट पहले इस पे बात करते हैं कि आप कैट तक जो अप्स एंड डाउन थे उसके बीच में आपने कितने मॉक्स लिखे, कैसे अपने आप को फिर भी कोर्स पूरा खत्म किया ऑनलाइन का एडवांटेज लेते हुए, कैसे किया? सर सबसे पहले तो मैंने जब क्लासेस ज्वाइन की थी तब आई वाज क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि इस साल तो जाना ही है, एबीसीएल में जाना है, उससे नीचे तो मैं जाऊंगी नहीं। तो वो करेक्ट, वाला बहुत क्लियर था मेरे दिमाग में। तो प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से शुरू की थी। बीच में जो ये वाला सीन हो गया कि यार कोविड हो गया और बहुत सारे लोगों के ऑफर्स रिवोक हो रहे हैं, तो काइंड ऑफ ये सारी चीजें अभी नहीं कर पाएंगे शायद, और ऑफिस जाना पड़ रहा है, सैटरडे भी हम लोग वर्किंग कर रहे थे तब, तो शायद हो नहीं पाएगा ये समझ के मैंने छोड़ा। लेकिन ठीक है, अभी कर रहे हैं तो जितना हो सकता है उतना देना चाहिए, ये सोच के प्रिपरेशन करी। हर संडे मैंने मॉक दी थी। और आपने बोला था हमें कि मॉक देना है तो अच्छे से प्रिपेयर करके देना, कैट के टाइम में देना, वो सारी चीजें मैंने अच्छे से फॉलो करी। सुबह का जो स्लॉट होता है 8 to 11, करेक्ट, और दोपहर का जो होता है 2 to 5। सो जब भी मैंने अपने मॉक दिए हैं तो मैंने उसी टाइम स्लॉट में दिए और इस फील्ड से दिए कि आई एम एट द एग्जाम सेंटर। तो ग्रेट, कुछ मॉक्स पहले एक दो मॉक्स का रिजल्ट बहुत ही खराब था, तो वापस से ऐसे लगना शुरू हुआ, यार हो नहीं पा रहा है अपने से। देन एक दो तीन मॉक के बाद ये आइडिया आ गया कि करेक्ट, अपन कितना पढ़ रहे हैं उस पे तो है नहीं, ये करेक्ट, 3 घंटे कैसे मैनेज कर रहे हैं उस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो मैंने काइंड ऑफ 15 मॉक्स दिए थे, तो वो ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन मुझे लगता ग्रेट, है कि 20 मॉक्स तो भी देने चाहिए। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं मैं अपने व्यूअर्स को वही फील देना चाहता हूँ कि बीच में अगर आपको भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है पल्लवी, कि अगर आपने और थोड़ा वो बीच के, खैर कोविड हो गया, थिंग्स वर नॉट इन योर कंट्रोल, राइट, बट फिर भी अगर थोड़ा कंटिन्यूटी और बनाते हैं तो प्रोबेबली ए बी वाज आल्सो विद इन रीच, दो एल प्रोबेबली ए बी सी एल, देयर इज हार्डली अ डिफरेंस, राइट, प्रोबेबली अ इंच, राइट, अमंग दीज कॉलेजेस। बट वही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यू शुड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग इट, राइट, बिकॉज डेस्टिनी इज प्लान फॉर यू। आपने इतनी तकलीफें देखी, 2 बार कोविड हुआ फिर भी, लेकिन बीइंग अ पोटेंशियल, राइट, और आपने जो इनिशियल ऑफिस के बाद भी जो मेहनत की थी, इट ऑल हेल्प, राइट, इट्स क्यूमुलेटिव सम, राइट? एक दिन से कैट नहीं निकलता है, राइट, ये पूरा एक सम है। तो अब मुझे बताइए कि कैट के बाद रिजल्ट आ गया पल्लवी, और आपको कॉल्स आना धड़ाधड़ चालू है, निटी, राइट, आईआईटीज, राइट, और आईआईएम्स, राइट, एल। तो आप फिर उसके बाद चार्ज अप हुए, जीडीपीआई की तैयारी कैसे चालू की आपने? क्योंकि आई एम वेरी sure that my viewers are going to gain a lot from you about GDPI preparation, because you almost converted every call, right, that you had. या So
सो वो कैसे चालू किया? पर दूसरा कोविड होने के बाद तो पहले तैयारी चल रही थी, फिर मार्च में कोविड हुआ, सडनली कुछ इंटरव्यूज बचे थे। थोड़ा सा एक अपनी जर्नी बताइए जीडीपीआई के बारे में। आई थिंक सो इट विल डेफिनेटली so thankful that you are there to share your story, because I think so twice being affected by COVID, right? एक बार जून जुलाई में जब पीक तैयारी चालू होती है लोगों की, राइट? फिर उसके बाद एक बार मार्च में जब इंटरव्यू डेट्स आ गई हैं, राइट, सामने खड़ी हैं। सो प्लीज शेयर दैट। सो सबसे पहले मैं अपना कैट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी कैट इतना तो क्लियर हो गया था कि जितना दे सकते हैं उतना तो देना है। कैट में एक गलती करी मैंने। सेट थ्री का एक क्वेश्चन था जो वर्ड वर्ड फॉर्म में था, तो मैम ने बहुत क्लियरली बताया था कि इससे एक केसलेट तो आना है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें से सारे नंबर जो थे वो न्यूमेरिकल दिए थे, फिगर्स दिए थे, और बस उन्होंने जो ट्रिक था वो दिया था वर्ड्स पे। आउट ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स बोला था उन्होंने जो हमने पढ़ा नहीं, तो फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस का वो पूरा कैसलेट गलत हो गया। ओहो। तो ये ओके। वाली गलती मैंने करी थी, तो सो ये आप अपने व्यूअर्स को बेसिकली मैं बोलेंगे कि क्लियर। आराम से अच्छे से पढ़ें, शांति से पढ़ें, राइट? बिकॉज रीडिंग इज वेरी अगर इंपॉर्टेंट। आपका जी। आपका कितना भी वो स्ट्रांग हो पॉइंट, करेक्ट। आपको ये चीज अगर आप मिस करते हो, तो मेरा परसेंटाइल उसकी वजह से बहुत डाउन हो गया, जितना आना चाहिए था उतना पर्टिकुलरली नहीं इन आया। वाला। करेक्ट करेक्ट। यस। करेक्ट अभी 20 मार्क्स वुड हैव मैटर्ड अ लॉट। करेक्ट करेक्ट, वुड हैव डेफिनेटली मैटर्ड अ लॉट। सो ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि राइट, आप खुश हुए सडनली देख के कि मैडम ने इतनी सेट थ्योरी पढ़ाई है, 100 क्वेश्चन थे, अपने बुक में भी इतने सारे क्वेश्चन थे, वीडियो सोल्यूशन भी था। हमें तो आता ही हमें है तो आता बहुत ही है, इजी दिख अभी रहा निकल है। जाएगा। और करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स था, सो उसके करेक्ट, लिए टीटा निगेटिव था। मार्किंग नहीं है, तो मेरे करेक्ट इसमें काइंड ऑफ 12 to 15 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए, करेक्ट जो करेक्ट। नहीं करना चाहिए था मिस्टेक। चलो तो ठीक है, उसके गुड बाद जब ग्रेट। कॉल्स आना शुरू हो गए, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार सारे कॉल्स कन्वर्ट हो पाएंगे। मुझे कॉल्स आए थे BIKL और बाकी सारे, उसमें से मैंने सिर्फ 5 इंटरव्यू दिए थे, BL IK और नीटी। बाकी मैंने दिए नहीं थे। IITs जी SPGen बाकी सारे मैंने भरे ही नहीं थे, क्योंकि जाना है तो यहाँ जाना है, वरना नहीं जाना। जी जी इतना तो क्लियर था, जी वरना वापस से देंगे पढ़ के। जी। तो जब GDPI का प्रिपरेशन शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले एक चीज करी थी, आपसे एलुमनाई के कांटेक्ट लेके करेक्ट उनसे कॉल पे बात करी थी कि ये कहाँ से पढ़ना है, ये क्या पूछते हैं। करेक्ट। आपने मुझे धनंजय और सौरभ का नंबर दिया था, जी सो मैंने उनको कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया, जैसे बताया कि ये सब कौन से सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रांग है, वो किस चीज पे पूछ सकते हैं। वो मैंने, एक था कि मैंने प्रिपरेशन बहुत नहीं करी, लेकिन जितने भी करी वो स्ट्रेटेजिकली करी। करेक्ट। ये मेरा क्लियर था। तो जो भी मेरा वर्क एक्स रिलेटेड है, तो मैंने अपने कलीग से जाके बात करी कि उन्होंने कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह किए हैं क्या, उनसे कुछ स्टडी मटेरियल मिलता है क्या। तो मैंने हर किसी के पास जाके, सिक्स सिग्मा जिनका भी ब्लैक जी बेल्ट है, उनसे जाके बात की कि आप कुछ ऐसा कुछ दे सकते हो जो पढ़ने के लिए छोटा तो हो लेकिन सारी चीजें कवर कर सके। करेक्ट तो मैंने सबसे स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया लिटरली फॉर 2 वीक्स, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तब तक लोग अपना पढ़ना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैंने तब तक कलेक्शन किया था जो मुझे पढ़ना है। ग्रेट। और उसके बाद जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, जिसमें अ, मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क कर गई कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जो जिस भी सेक्टर में थे, थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, तो मैंने उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स थे मैकेनिकल के, थर्मोडायनामिक्स, RAC वगैरह, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैंने वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखे थे। बाकी जो थे मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया था। और इंटरव्यू से मुझे जब ये पूछा कि आपने बाकी पढ़े या नहीं, तो मैंने क्लियरली उनको ऑनेस्टली बोल दिया, नहीं सर नहीं पढ़े, आप कुछ भी ग्रेट पूछोगे याद नहीं आएगा। ग्रेट। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड, आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी वर्क फॉर मी, कि जितना काम का है उतना ही पढ़ो। करेक्ट। तो जितना पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, राइट? इफ आई कैन पुट इट दैट वे, और यू विल गाइड एवरी ऑफ द एस्पिरेंट टू आल्सो फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी कि इंटरव्यू में बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के जाओ, जितना पढ़ सकते हो उतना बहुत अच्छे से पढ़ो, और जो नहीं आता है यू कैन बी ऑनेस्ट सेइंग दैट ये या रिवाइज नहीं किया है। उनको भी पता है कि अगर आप 2 साल पहले जी ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जी आपको बस ऑनेस्टली बताने कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता है। जी। तो वो उतना तो समझ जाते हैं कि ठीक है। करेक्ट। तो वो ऐसी चीजें डेप्थ में पूछेंगे जो आपने बोला है कि हाँ सर ये ये मुझे आता है। आता है। करेक्ट करेक्ट। तो पल्लवी, ये सब सही जा रहा था, आपने तैयारी चालू कर दी थी, राइट? कॉल्स की आपकी डेट्स क्या थे? ये जो आपने सेकंड कोविड की बात की, राइट, जो मार्च में था, तो उससे पहले आपके कौन कौन से इंटरव्यू हो गए थे, बाद में कौन से थे, फिर बाद वाले आपने दिए, दे पाए, क्या हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा सा, बिकॉज इट वुड बी अ शॉक, सेकेंड टाइम हो रहा है, साइकोलॉजिकली
इट इम्पैक्ट्स यू। एक बार ही लोग नहीं रिकवर कर पाते हैं हाँ, वो साइकोलॉजिकली। है। कोविड से इतना सब आप देख लेते हैं, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, आसपास आपको इतने सारे लोग दिखते हैं जो दे आर ऑल इन पेन, राइट। अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम होता है, रिकवरी में भी थोड़ा टाइम लगता है, यू फील वीक, राइट। आफ्टर सिम्टम्स भी कुछ लोगों को सर दुखता है, कुछ लोगों को वीकनेस ज़्यादा होती है। तो वो सब के बावजूद, राइट, सेकेंड टाइम जब हुआ तो आपके कितने इंटरव्यू हो चुके थे, कितने बचे थे, और फिर आपने उनको कैसे लिया जो बचे हुए इंटरव्यू थे? जब आई थिंक मुझे कोविड हो गया था मिड मार्च में, उससे जी। पहले मेरा लखनऊ का रिसेंटली हो चुका था, इंदौर भी हो चुका था, मेरे बचे थे कोझिकोडे फाइनेंस और निटी बचा था मेरा। जी। बेंगलोर का मैंने रीशेड्यूल करवाना ट्राई किया, लेकिन तब तक उनका प्रोसीजर खत्म हो चुका था। जी। तो मेरे ये 3 इंटरव्यूज बचे थे, कोई कोड़े फाइनेंस और निटी। तो मैंने ये जो मुझे जब कोविड हुआ तब मुझे ऑफिस से 14 डेज का लीव मिला था, जो जी। कभी भी मिलना तो उस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं था, जी। क्योंकि बीइंग इन ऑटोमोटिव मार्केट तब पीक पे चल रहा था जी। मार्केट। तो मेरे कलीग्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे बॉस भी बहुत सपोर्टिव थे कि ठीक है, मतलब वर्किंग आवर्स के बाद में मैं कभी ऑफिस में रुकी नहीं काम के लिए। तो 9 घंटे तो वो जो थे वो छोड़ के मैंने जितना टाइम इधर मैं स्पेंड कर सकती हूँ, फोकस कर सकती हूँ, मैंने उतना किया। तो जब कोविड हो गया था तब पहले 2-3 दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल रहे थे कि सेकेंड टाइम हो रहा है। जी। घर पे बताया नहीं है कि आई एम पॉजिटिव और जी। आई एम हॉस्पिटलाइज्ड, ये वगैरह चीजें। तो जब घर पे पता चला तो ये लोग और टेंशन। पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो वाला एक चीज था। करेक्ट। अभी देन ऑन 5th और 6th डे नीटी के डेट्स आ गए थे, सो नीटी का मेरा इंटरव्यू उसके बाद 10 दिन बाद था। तो मेरे पास 8 8 दिन थे। तो मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया कि इधर आप इंटरव्यू दे सकोगे तो उनको बोलना कि देना है या फिर नहीं। करेक्ट। तो ये जो टाइम था, मुझे जो स्पेयर टाइम मिला था 14 डेज का, वो मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और क्योंकि मेरे 2 इंटरव्यूज हो चुके थे तो मुझे आइडिया आ चुका था कि यार पूछेंगे क्या, करेक्ट। किस चीज पे पूछेंगे। और इस साल जीडीपीआई था नहीं, लेकिन मेरे इंटरव्यूज में व्हाट पूछे गए थे। ओके। उन्होंने कुछ टॉपिक दिया है, उस पे जी। 30-40 सेकेंड्स दिए और देन यू हैव टू रिएक्ट। तो वो वाला जो टाइम स्पैन था पूरे 15 डेज का, वो मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। जो सब्जेक्ट्स मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़े थे वो मैंने अच्छे से डेप्थ में पढ़ लिए। और लोगों से जो भी मुझे मटेरियल मिला था, जो मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़े थे पहले इंटरव्यूज में, मतलब उतना डेप्थ में नहीं पता था, या फिर जो जी। गलतियां अभी करी है वो मैंने वहां पे इम्प्रूव कर दी वो 15 डेज के स्पैन में। तो ग्रेट। उससे 2 चीजें अच्छी हुई, एक तो मेरा प्रिपरेशन हो गया, दूसरा मेरा ध्यान भी भटक गया कोविड से। जी। तो बहुत बढ़िया। नीति का जो इंटरव्यू था उसमें मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि यार हम कोविड पॉजिटिव, तो मुझे जो भी पहला स्लॉट होगा आपके इंटरव्यूज में वो जी। दे दो। जी। तो उनको मैंने अपना सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया था डॉक्टर से, तो उन्होंने सबसे पहला वाला स्लॉट मुझे दे दिया। सो नीति के पहले दिन ही मेरा इंटरव्यू जल्दी खत्म हो गया फिर। जी। सो निटी में क्या रिजल्ट आया आपका, क्योंकि यूएस उसमें भी जानना चाहते हैं कि आपने कोविड में दिया इंटरव्यू, लेकिन यू कन्वर्टेड निटी कोई कोड, ये कन्वर्ट हुए आपके? हाँ हुए, दोनों कन्वर्ट हुए। Great, great. So that's like a true COAPN and a true gem, Genesis student, right? Against all odds, right? We should not give up and we should definitely continue giving, because या तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि you were initially very focused कौन कौन से इंटरव्यूज देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, कौन से कॉलेजेस नहीं भरने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और इंटरव्यू भी दे पाएंगे तो अच्छे से तैयारी करके देते हैं, नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, रीशेड्यूल होगा, नहीं होगा, बट एटलीस्ट सो गिविंग आई ऑल वॉज ऑड्स। आई वॉज टोटली क्लियर कि अगर मैं करती हूँ ये चीज तो आई गिव माई 100%, और एल्स आई टर्न इट डाउन ऑन द फर्स्ट डे। यही पल्लवी मैं आपके माध्यम से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूं कि वो फोकस रखें, कम करें पर अच्छा पढ़ें। आपने सिर्फ 15 मॉक लिखे, देर आर अचीवर्स जो 50 मॉक भी लिख चुके हैं, राइट। तो आप 50 लिखते तो क्या करते, बट नहीं, टाइम था, बीच में भी कोविड हुआ था, जुलाई मेन महीना जब मॉक चालू होते हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा लोग तैयारी पे ध्यान देते हैं, फिर 1-2 महीना आफ्टर इफेक्ट्स में करूँ ना करूँ, बाकी लोग भी रिवोक्स हो रहे हैं, करेक्ट। दब जगह से मिल रहा है कि यार अगर आप ज्वाइन भी करोगे तो भी आपका वर्चुअल ही चालू होगा एमबीए, तो वर्चुअल एमबीए करने से अच्छा है 1 साल और रुको, अगले साल दो, उसके अगले साल दो, लॉट ऑफ थिंग्स। बट फिर भी आपने जितना किया उतना अच्छे से किया, राइट। एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू टेल टू ऑल आवर व्यूअर्स। तो पल्लवी, लास्ट में कोई एक आप एडवाइस देना चाहेंगे? बीइंग एट आई एम लखनऊ, राइट, आपके असाइनमेंट चालू हो गए, हेक्टिक है, तो लेकिन फिर भी
anything that you would like to give our viewers in terms of advice that they should follow, कैसे उनका तैयारी चलना चाहिए, कब तक कोर्स खत्म करके मॉक्स पे आके फिर एनालिसिस करके जीडीपीआई की भी तैयारी वो जल्दी चालू कर लें तो अच्छा है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, कुछ भी जो आपको लगता है, आई थिंक सो वी वुड लाइक टू डेफिनेटली एंड विद योर वैल्यूएबल एडवाइस टू ऑल द viewers or students who would be hearing you, and they would be also eyeing to be one of your juniors. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सिलेबस पूरा उन्होंने खत्म करना चाहिए जून से पहले या फिर जून एंड तक। तो अभी से मॉक देना शुरू करना चाहिए जुलाई टू अक्टूबर मिड तक। उसके बाद उन्होंने मॉक देना बंद करके रिवीजन करना शुरू कर देना चाहिए। तो जितने भी मॉक लोग दे सकते हैं उतने देना चाहिए। अभी ये डिपेंड करता है हर किसी पे, आप कितना एफर्ट्स डालना चाहते हो। आई विल सजेस्ट कि जो मॉक्स दे रहे हैं वो लोग वो एक स्टिपुलेटेड टाइम में दे, कभी भी मॉक्स ना दे। ये आपकी जो सलाह थी जो मैंने फॉलो करी, आई विल टेल देम कि यही फॉलो करो। एक 8 to 11 या फिर 2 to 5 जो भी है उसमें मॉक दे दो, क्योंकि हमारा पिक टाइम अलग होता है लेकिन एग्जाम का टाइम वो नहीं मैच हो पाता है। जैसे मैं अगर रात में एग्जाम देती हूँ तो आई कैन फोकस मोर, लेकिन आफ्टर ऑल कैट रात में नहीं होने वाली है, कैट तो सुबह होने वाली है। इंजीनियर्स अगर रात में कैट होती तो इंजीनियर्स और फ्लाइंग कलर से सब कुछ अच्छा करते हैं, राइट? मार देते हैं। यस, तो ये वाली चीज है कि ये टाइमलाइन फॉलो करो। सेकेंड ऑफ ऑल करंट अफेयर्स, अभी से करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दो सो दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक। जैसे मेरा इंदौर का पूरा इंटरव्यू चला था फार्म बिल्स और ये सारी चीजों पे, सीएबी। और मेरा कोझिकोड का इंटरव्यू पूरा चला था इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि तब वेस्ट बंगाल और केरला में इलेक्शन चल रहे थे और कोझिकोड केरला में है। तो बाकी सारी चीजें वहां से चली थी। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कितने नंबर ऑफ सीट्स जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी थी। तो करंट अफेयर्स अब से अगर लोग उस पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट। प्लस जैसा कि हमने मिलके दोनों ने हमने रिव्यूज किए थे आपके काफी क्वेश्चंस, राइट? तो वो पर्सनल क्वेश्चंस, गोल्स क्या करना है, ऑपरेशंस में जाना है, क्या करना है, सो वो भी आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि इफ लेट्स से दे आर फ्री टाइम, अभी मॉक दे दिया है, पढ़ने की थोड़ी इच्छा नहीं है, 15 मिनट फ्री है, सो लेट अस ट्राई टू थिंक अबाउट कि अबाउट योरसेल्फ में क्या स्ट्रेंथ पॉइंट बोल सकते हैं, मेरे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस कहाँ हैं, लोकेशन। सो मेरे हिसाब से आप वो क्या उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ, एक तो चीज है कि वो लोग एक तो जो आपने फॉर्म भरा है और जो आप बोल रहे हो सिर्फ वो चीजें पूछते हैं। सो यू हैव टू बी सबकॉन्शियस कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने उसके स्टेट का नाम 3 बार रिपीट किया उसके इंट्रोडक्शन में और उसका पूरा इंटरव्यू उसी चीज पे चला। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या बेचना है। करेक्ट, करेक्ट। तो उस पे अगर आप ले जा सकते हो तो ये है। मुझे पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो मैंने कोई का इंटरव्यू उधर डाइवर्ट किया था। तो मेरे पूरे 20 मिनट सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स पे चले, पूरा हिस्ट्री पे चले। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख के रखी थी एबीपी की, जो मुझे क्लियरली पता था कि हिस्ट्री क्या है, प्रधानमंत्री मैंने देख के रखी थी। तो मुझे थोड़ी हिस्ट्री पता थी तो मैं उनको बता रही थी। देन दे वर लाइक हाँ इससे पीछे क्या हुआ, इससे पीछे क्या हुआ। तो ये आपको मुझे लगता है धीरे धीरे 2-3 इंटरव्यू देने के बाद समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें खींचना किस चीज को है। करेक्ट। वो अगर अच्छे से करते हो तो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो आई थिंक वो बहुत सारी चीजें नहीं कर लाइक वो बहुत सारी चीजें तुम्हें आना चाहिए वो नहीं देखते। तुम जो भी बता रहे हो उसमें कितना अच्छे से आता है, ऑन अ लेवल ऑफ 0 to 10 तुम कितना प्रिपेयर्ड हो वो देखते हैं। Correct. So with this valuable advice, right, which Pallavi has given to all, I would like everybody to understand what she said in a nutshell, right? You should not give up against all odds, right? We all are fortunate that those who were untouched with that disease, right? But if let's say वो होने के बाद भी आपको एक बार होता है, फिर भी आप ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस कंटिन्यू चल रहा है आपका, राइट? लोग वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन आपने फिर बीच में आपको लगता है ये कैट वाला करूं। एक कॉम्प्लेक्स था मुझे कि यार मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं उनको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, सिर्फ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये वाला। सो आई थिंक आफ्टर ऑल इट्स योर डेस्टिनी। तो वो वाला चीज अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ खुद पे फोकस करना चाहिए। करेक्ट। और जीडीपीआई में भी आपके पास जितना टाइम है प्लान करिए, पहले मटेरियल इकट्ठा करिए, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और फिर उसके बाद नॉट कवरिंग एवरीथिंग एंड ओनली ऑन सरफेस लेवल, बट few things which you know really and which you can really sell in the interviews rather than covering all. So nice of you, Pallavi. We
are all proud in Genesis. We are all proud of you, and the entire Genesis fraternity. We wish you all the very best in all your future endeavors. Keep on shining like a true gem, and we will always be proud of you. Thank you very much Thank for you, being sir. with this in this show and giving insights to all our viewers. I think so they will definitely get a lot of motivation from your story. Thank you. Thank you so much, sir.